If there's one man that Vikrant and I wanted to interview on the eve of the India-Pakistan final at the Champions Trophy, it's got to be this man. 92 World Cup, 2003 World Cup, 2011 and many another match. India against Pakistan, you won it. Thank you Sachin Tendulkar for speaking to us. Vikrant, pleasure. बहुत ज़्यादा। और सचिन अब देखें, हम पहले भी बात कर रहे थे कि लॉर्ड्स मैदान से आधा किलोमीटर दूर है हम, और ऐसी जगह पर जो इतिहास रहा है हमारा, इससे खूबसूरत जगह नहीं हो सकती और इससे अच्छा नतीजा नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल और इंडिया को जीतना है। आई एम ऑल्सो इक्वली कह सकता हूँ कि थोड़ा इम्पेशेंट हूँ क्योंकि ऐसे मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के हमेशा के ना, दर्शकों को देखने के लिए मज़ा आता है और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है उनके खिलाफ। जिस तरह से हमने उनको आईसीसी के सारे टूर्नामेंट्स में है ना एक अपर हैंड रहा है हमारा, तो मैं यही कहूँगा कि प्लेयरों को बाहर जाए ग्राउंड पे और उसी तरह प्रदर्शन दिखाए जो मैच के बाद हम सब सेलिब्रेट कर सके। Sachin, the interview that we had done for your film, and you had mentioned that Virat and his team does have a serious chance, and you are right. What have you been impressed with the way Virat has led and batted, and the way he's conducted himself as captain? Yes, I think it's overall been a terrific performance and wonderful leadership by Virat. Of course, I mean, you need guys to perform. You need individuals to put up their hands and say that, okay, I'm going to be the one who's going to win this game today, and the guys have been able to do so. You take Shikhar, who's batted exceptionally well. Rohit has shown some amazing form. Virat in the last two games again came and got those crucial runs. UV batted really well in between. Then couple of cameos, one by Hardik and one by Kedar. So overall, if you see, all the guys have chipped in, and that is what you need. And MS, of course, not to forget MS. So we need these guys to come together again tomorrow and do something special. And in the bowling department, if you see, Bumrah has been exceptional, so is Bhuvaneshwar, and then spinners have also done reasonably well. The conditions are slightly different here, but as a package, you see even Hardik has come and got those couple of crucial wickets here and there. So all in all, I feel the package is really strong and formidable. But are we before Vikrant asks the next one, are we the favourites according to you, or is it about who handles pressure? Always the favourites. There is no toss up there. India is always right up there, and yes, it will also depend a lot on how the teams are able to absorb pressure, how they get into that momentum and continue with that for a longer period. And then that is what something which wins you matches. नहीं, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि शायद श्रीलंका की हार उस वक्त तो बड़ी चुभी थी हमें लगा पता नहीं टीम सेमीफाइनल में भी जाएगी कि नहीं जाएगी, बट शायद सही वक्त पर सचिन भाई वो एक वेकअप कॉल हुआ, क्योंकि गेंदबाजी अगर कमजोरी थी तो उसको आपको टाइट करना था। देखिए, मैं हमेशा समझता हूँ कि सामने वाली टीम भी जीतने के लिए ही आती है ग्राउंड पे। हम कुछ खराब क्रिकेट नहीं खेले थे, हमने भी 320 रन किए थे और उन्होंने अच्छी बैटिंग करके वो रन्स चेस किए। हाँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि रन्स निकल जाते हैं जब बॉलर्स डाल रहे होते हैं, या कभी कभी हम चेस नहीं कर पाते, मगर मुझे नहीं लगा कि हम बिल्कुल ख़राब क्रिकेट खेले। श्रीलंका प्लेड गुड क्रिकेट और क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम ग्राउंड पे जीतने के लिए आती है। कभी ना कभी तो सामने वाले भी आके अच्छा परफॉर्म करेंगे, आउट परफॉर्म कर सकते हैं हमें। वेकअप कॉल, मुझे नहीं लगता कि टीम सो रही थी। मुझे नहीं लगता है कोई भी टीम बाहर जाके दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। वो हमेशा उनकी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके जाते हैं, मगर कभी कभी जो आप प्रिपेयर करते हो, जो आपके प्लान्स होते हैं, वो क्लिक नहीं होते, तब ऐसे बाहर नज़र आता है कि शायद ये वेकअप कॉल अच्छा था। मगर जो भी होता है, मुझे लगता है अच्छे के लिए होता है और टीम इज़ बेटर प्रिपेयर्ड, आई वुड से। और जो आपने सवाल किया था, मैं उसी को आगे लेके जाऊं कि वो सचिन भाई ने कहा कि जो टीम अब्जॉर्ब करेगी प्रेशर को पहले, वो शायद बेहतर रहेगी, और पाकिस्तान अब्जॉर्ब कर नहीं पाता है प्रेशर को जब भारत के साथ खेलता है। पता नहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है उस टीम। या बहुत बार मुझे ऐसे जितना दिखाई दिया उसमें इनकंसिस्टेंसी रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वैसे ही होगा। कल का एक नया मैच है, नया दिन है। हमें ऑलवेज मैं यही समझता हूँ कि हर मैच के पहले उसी तरह से प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, और
पूरी तरह से मैं कहूँगा कि ना प्रिपरेशन रहे और जाके कोई चांस ना दे, पहले बॉल से गेम पे काबू रखे. But Sachin, the team that you beat, 2003 is what I am remembering. Wasim Akram, Saeed Anwar, I mean, whatever. Even 99. That team and this team, is it the same? Or because, you know, I personally don't like comparing. Fair comparing. But, you know, you start looking at the names, you know, you clearly know that these are two different teams. And if you go and ask 10 people, on all 10 people would pick 2003 team, which is natural. I mean, you've got, you know, possibly the best bowling attack at that time in the world, where you had Wasim, Waqar, Shoaib, Afridi and Abdul Razak. So a formidable fast bowling attack in South African conditions. So, you know, but I don't like to compare again. I'd like to reiterate. I'm not pushing you to that. But having said that, when, you know, tell us a little bit about how to take pressure for a game like this, because there's whole cricket world, whole India, everyone's I hadn't slept for good 10-12 nights before that game in 2003. So yes, the anxiety levels are always going to be really, really high. But you learn to deal with all these things. You know, you learn to, once you've crossed the line and you've walked on the field, things kind of start hearing, Sachin, that it's another cricket game. Is it another cricket game or it's different? Please tell us. Like, more so if it's a final. It's a final, and it's India-Pakistan final. So I don't think it is another cricket game. Yes, we try and keep telling ourselves that it's another cricket game. You still have to go out and bat and take the same leg stump guard. Bowlers have their run-ups measured, and those run-ups are also the same run-ups. You know, nothing changes. But it's just that the way, you know, you approach the game, that preparation changes for sure. I feel it's about also playing mental games and out-thinking each other there in the middle. And if suddenly you realize that your plan A is not working, how quickly you move to plan B and make things happen is what matters. So I think it's going to be situational awareness and peripheral awareness. You need to have awareness when you play tomorrow, how quickly whether the plan is working or not, you need to realize that as quickly as possible. अच्छा सर, मैंने इस हाल के 3-4 साल में जो क्रिकेट में देखा है, कई अच्छी टीमें बनी हैं, इंग्लैंड अच्छी टीम बनी है, लेकिन वो बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई. इंडिया शायद अच्छी टीम है और बड़ी टूर्नामेंट भी जीतती है. शायद लेगेसी इन्हीं की टीम से आई है आहिस्ता आहिस्ता, कि वो ड्रेसिंग रूम जो है बड़ी टूर्नामेंट जीतता है. फ़र्क क्या होता है एक टीम जो उतरती है बड़ी टूर्नामेंट जीतने के लिए, और एक टीम जो अच्छे मैच जीत सकती है पर टूर्नामेंट नहीं जीत सकती? मैं तो फिलहाल तो सिर्फ इंडिया के बारे में ही सोचूंगा. मुझे नहीं इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे हुई, वेदर वो अच्छे क्रिकेट खेल रहे और क्वालिफाई नहीं हो रहे फाइनल के लिए, व्हाटएवर. मुझे वो सारी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है. मगर इंडिया जिस तरह से खेल रही है, कि मैंने देखा काफ़ी टाइम से हम जो आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस तरह से खेले हैं, वो बहुत मुझे पसंद आया है. और आई थिंक जिस तरह का एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट होता है कि आप कैसे खेलते हो और ऑपोजिशन को जाके कैसे हराते हो, दैट हैज़ बीन कन्विंसिंग. कि आप जब कोई भी ऑपोजिशन को जाके पूछोगे कि कैसे था इंडिया के अगेंस्ट खेलना, तो कहेंगे कि यस, इट वाज अ सॉलिड टीम एंड दे प्लेड बेटर देन अस. और दैट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट, कि उस तरह का, उस ब्रांड का क्रिकेट जाके हमेशा खेलना इज़ इम्पॉर्टेंट. आप हमेशा अलग अलग ऑपोजिशन के साथ खेलते रहते हो, मगर आपके खुद के स्टैंडर्ड पे जब रहते हो, तो सामने वालों को हमेशा एक फिक्र होती है कि ना भाई इनके 2 विकेट या 3 विकेट जल्दी गए, मगर और 3-4 बैट्समैन आने वाले हैं. और वैसे ही अगर हम फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर रिक्वायर्ड रन रेट नीचे भी आ जाता है बैटिंग के लिए, तो भी उनके दिमाग में एक होता है कि चलो बुमराह या भुवनेश कुमार या कोई आएगा और विकेट निकालेगा. मैं आपका वीडियो देख रहा था आईसीसी वेबसाइट पे, जब आप रिकलेक्ट कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 98 से, और उसमें 2000 पर जाकर आपने युवराज सिंह की भी बात की. वो नायरोबी का मैच मुझे याद है, आपने शुरुआत की थी और युवराज का डेब्यू हुआ. 300 वनडे खेल गए युवराज भी. कमाल की बात है. मुझे हमेशा यूवी को बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में, और ऑन फील्ड तो चैलेंजेस होते ही है. हर बार आप मैच खेलने जाते हो तो बॉलर आपको आउट करने की कोशिश करता है, कभी कभी इंजरीज होते हैं, वो सारे. मगर उसे जो ऑफ द फील्ड चैलेंज हुआ लाइफ में, वो सबसे बड़ा चैलेंज था, और वहाँ पे वो मैच जीते, तो मेरे लिए वो चैम्पियन है.
वंस अ चैम्पियन ऑलवेज अ चैम्पियन, और वो यूवी है। 300 मैच जिस तरह से यूवी खेला है और जितनी दिलचस्पी से खेला है, जितनी पैशन से खेला है, मैं बहुत यूवी के लिए खुश हूँ। मेरी बात भी हुई यूवी के साथ, और हम नॉर्मली जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वी ऑलवेज से यूवी यू कैन डबल इट अप, सो दैट्स व्हाट आई हैड टू से। Last couple of questions because Sachin has to go. Sachin, Virat in his press conference keeps saying that as cricketers we wait for such matches and for such opportunities. Can you tell us from your experience? 100%, because I'm sure the Indian team landed in England rather, thinking of lifting that trophy, and that moment is 24 hours away from now, and it's the most beautiful thing to happen. So you have to walk out there in the middle and compete hard to be able to lift that trophy, and that was the reason they flew from India. आप मैदान पर जाएंगे, अगर भारत को ट्रॉफी मिलेगी, आप उसमें कैसे शिरकत करेंगे? नहीं, मैं तो फेंस के इस तरफ बैठूंगा और तालियां बजाऊंगा, और नहीं, हमेशा वो तो हमेशा है ही है टीम के लिए, वो तो पूछने की बात नहीं है, और मैं सपोर्ट करूंगा टीम को। और अभी कहता हूं कि ना, जाओ, हमारे गुड विशेस आपके साथ है, सिर्फ मेरे अकेले के नहीं, बिलियन प्लस पीपल के विशेस आपके साथ है। एक और सवाल आखिरी, आपने ये जुमला सुना है कि बेबी को बेस पसंद है, विराट को चेज पसंद है, आप एग्री करते हो? आई थिंक जिस तरह से हमने टारगेट्स चेस किए हैं, मुझे बहुत पसंद आए, और हम इनफैक्ट अगर आप सेमीफाइनल भी देखो बांग्लादेश के साथ हुई, एट नो स्टेज कहीं लगा कि हम 266 का टारगेट 40 ओवर में ख़त्म कर देंगे, और कहीं ऐसे नहीं लगा कि हम रिस्क ले रहे हैं या कोई ज़रूरत नहीं है वो शॉट खेल रहा है। आई थिंक वी जस्ट प्लेइंग नॉर्मल क्रिकेट, और उसके साथ अगर आप इतना इजीली टारगेट चेस करते हो तो चेस करना ही पसंद है और बेहतर है शायद। So Sachin, it's India. 100% India. There is no toss up. There's no toss up, says the master. Clearly there's no toss up.